Museum. He expired on 17th May, just 1 day before the Science Museum Day. So, in his honor, he can you see, can you read it? The former president of the International Council of Museum and Theatre, a visionary in the field of science communication, news and development, and so including in India, all over the world, played a pivotal role in shaping the vision and direction of NCSC. Recipient of many I will not say all those, but he received Padma Bhushan or Padma from the Government of India and many other awards. I am sure his enduring legacy will continue to inspire all of us. Thanks to you. Well, to pay respect to the jury, I will observe 1 minute silence. Something. And not only that, there is another side news that we lost Professor Nalekar yesterday. He is no more, astrophysicist. And another scientist also expired. I forgot his name, is very old. He expired yesterday. And Professor Dr. Ghosh, he donated his mortal remains to the University of Washington for their research. So it's a very, very sad day for us. I had a chance to meet him once when I came back from abroad. He was starting Science Museum in Dhaka, India. Then he called me whether I could tell my sister, I just returned to the country, I have to do my research first. Otherwise I can survive here. I will tell you later, but that letter never came back in my turn. Anyway, I regret now, I wish I could spend some time there. Now I would like to share with all of you what we covered here, something about our J.C. Bose, J.C. Bose mission. Acharya Bhavan, it is here. Acharya Bhavan Science Scientist Gallery and Research Center. J.C. Bose Science Heritage Museum. In this place is owned by Sir J.C. Bose Trust, 93 APC Road. And what is this museum? It is the archival museum, one of the archival museums. Archival museums, you know, archival museum are the keepers of culture and heritage, connecting past, present, future. It's make a continuum from past, present, future.
of all the natural, national assets, archival museums are the most important thing, they are the gift of one generation to the next generation, future coming generation. And so this is, mark of the extent of our civilization. This is not my thought, it is a, very famous, archaeologist, Arthur Bagati. So now a few words about Acharyavan. What is inside? Why it is so important? Acharyavan is built by Sir J.C. Bose and they lived here till 1922, till 30 is a rich repository of paraphernalia and memorabilia of J.C. Bose and Lady Bose. For all his original resources, mainly can research, books, papers, slides, blogs. He used to make his own slides and blogs from his own experiment. Not only in scientific contributions, but internet also his contribution in radio science, time science, basic unity of all life and cosmic unity, similarity between living and non-living. You see the interior, everything, I don't know how many of you see how peaceful it is. It speaks of a person of eclectic taste of a philosopher, artist, whatnot, and nationalist also. Many of his pragmatic and his experiments in this mini plan research and radio science, radio cosmology were carried out in research. We have the laboratory where we carried out this. The laboratory is here. This dark room, this photography room is still there. He used to make his own space and we have the sound agency he used to have developed this as well. Next slide. Well, Acharyavan was built, as I said, in 1902 and then we see that last day here. He used to communicate with the precinct of Acharyavan, he used to communicate with the gracefully, I am showing you some of the photographs of this thing, but he used to interact with the people all around the world, not only India, here, Bernard Shaw, Albert Einstein, Swami Vivekananda, P.C. Rabindranath Tagore, Patrick Geddes, his first biographer, Mahatma Gandhi and his notable students, Meghnad Saha, Shaptan Bose, P.C. Maulana, all are except Mumbai. So even Rishi Aurobindo was here. He used to live here as a terrorist. We have the bullet he used for the So we have many interesting things. This is the room where the first floor we have small sitting room where Tagore and Bose used to sit and discuss on various subjects, science, literature, everything. They used to think that there is no rigid distinction between science and literature. See, this is, I don't know, you have seen, we used to have a chapping tree. Chapping tree is very favorite, or a very favorite of the Tagore and Bose. And the chapping tree is there, but unfortunately we lost that chapping tree during the Amphan, just going up on the top of the roof. And during the Amphan, it was at midnight our security called us and it was swinging like this. Fortunately, it didn't affect the building, it could save something. And this is the marble seat we have prepared where they used to, Lady Bose, they used to entertain their guest like Tagore,
from Vivekananda, Acharya Chandra, Sister Nivedita, etc. etc. Well, as I mentioned, here there are different floors, In the floors, here we all district of his artistic sense and this. But his laboratory, photography room, library, study room, bedroom are preserved here. These are on the different floors. Many, I say different floors, it is very difficult to show you all. I will just go through it simply. This is the view of the entrance and the ground floor. Meeting room here is we used to call the meeting room. It's an important place they were used to here. Instrument room, first floor. And second floor is study room. Bedroom is the second floor. The instrument room and bedroom here. This is bedroom and instrument room. And it's seminar room, study room, library, photography in the second floor. This laboratory in the top floor. And we used to have observatory still there, observatory in our telescope. This was used for viewing the night sky of the students of that time, and they could see the night sky of Calcutta. I came as a student here to see that. I have very fond memory of that thing. And some of the prize paintings after restoration, the building was shut. It's not. The building was shut for more than 30 years. It was under J.C. Bosch's family members. They didn't have any children. So it was their nephew, this nephew, William Bosch, was the director of Bosch Institute. He used to look after that. Then his sons, his nephew, he used to look after. After their death, it was shut for more than 15-20 years. One, J.C. Bosch made two trusts. One trust to see, maintain the legacy and artifacts and his movable, immovable, tangible, intangible, whatever heritage preserved here in Acharya, the trust, J.C. Bosch Trust. And another trust was for maintaining this institute, Bosch Institute. This management completely separate. So when we got this thing, it was like a Borobari, abandoned house, Muturubari, like a haunted house. And then after we kept this under test control and other thing for 3 months, we didn't allow anybody to enter to it. So, and then after that, I still remember when I first entered, there were probably bats over here, and I was scared. I don't like to to get air bite. Anyway, we come to this place. At that time it was this 150 baht versus liberty. So after training this, we thought that we had organized an international symposium in the office, 150 baht university. And then at that time, Times of India made a big issue. Acharya doors open to public. I remember July 2012, 2011, it was open. Then after that, slowly we were trying to, there's no money because J.C. Bosch spent all his money to do this institute. He didn't have much money though because his father died, he had to pay. And he spent all money, all his savings for the institute. So we have very, very little money, even to take a few low-paid stuff, we have to pay for some of our pocket. Anyway,
we applied to Airport Ministry of Culture, then slowly they first gave us some money, we make a big document, DPR, DPR made. We have to make DPR, they asked us 6 lakhs of rupees. So to be competitive, we did that. After that, we got some money and submitted to DPR. And to get finally the money, they classified it as a class 1 museum. There in the Ministry of Culture, they museum different day, and it says class 1 museum. Class 1 museum can get 5 crores of rupees, theoretically. But we have to generate out of this 20% of it, that means 1 crore. They will give us 4 crores, 1 crore. And then all different places, different places, and our donor list is here. We got some money, some place, several, not 1 crore, but several lakhs. Then we use some money to us. So these are the things after getting money we invested. Here, charcoal painting of J.C. Bose over here. We always give what is before restoration, after restoration. Here is Tagore's. Why don't you give it to me? लाल स्विच पर, लाल स्विच. Jamini Prakash Kanuni, 1922 of the this one about, I think this is also by Jamini Prakash Kanuni, but we did not see the signature yet. This charcoal painting by over there, Government of 1925, we had before natural restoration, paper painting of Rabindranath Tagore by Rabindranath Tagore over there. Avalokiteshwar on a silk fabric by Frida H. Dash is Swedish lady. It is in this one. And the other one. All these are here. Bharat Mata by Nandalal Ghosh here on the back. And painting of all along the ceiling and there are murals, 29 murals by Nandalal Ghosh and his colleague Shulanko. This is the story of Mahabharata. You see that here you can see there is the Shakuni Mama playing Pasha with Yudhishthir. And another, she identified, Shonishta identified, this is, Yudhishthir is going to heaven after the war is over. With his God, he is going to heaven. And we have to identify all this, this thing. I'm sure we will be able to identify. Vande Mataram flag is the first national flag designed by Sister Nivedita. It was presented at the National Congress in 1906. It was on display over here. The bus series of Nivedita by Vinayak Kumar. Is here, and my back. Bodhisattva Padmapani is in this bedroom somewhere. Lati Puja by Nandalal Ghosh, original. Well, many books. There are many things that Tagore gifted Ghosh, these books, all these books. Bernard Shaw presented a set of books, these books to Ghosh with a note. The list to the greatest scientist here. Bernard Shaw's signature. Brahmarola, he presented all these books with his signature here. It was in French. But his signature is here. Well,
J.C. Bose, people used to think that J.C. Bose didn't earn his BSc degree. It was always on another. It is not so. His BSc thesis, we have a copy of it here, and this is J.C. Bose, London University. He got it in 1896. Examiners, the two Nobel laureates, J.J. Thomson and J.J. It's one thing. They said that after seeing his two papers, they said he doesn't need any to fulfill any requirement of the London University. No, post or nothing, etc. And this is the gown used by him to receive the BSc degree, and submitted here was a student in the gown. And it is a Restoration is going on and this is final. yeah. We are doing the student, this is the first written after. Okay, original instruments is all are here on display in the instrument. Then we presented our, we are requested by London Science Museum to send two instruments, testograph and photograph, and these are for display. When London was in Science Museum was celebrating 500 years of science and innovation movement in India. It was there organized by year, and Honorable Prime Minister Modi ji, he visited with King's Charles, that time King's Charles. And this one, Shantana, the Stream of Light, by Vedic Nicholas, famous Russian scientist, Russian artist. It was now national, yes, it is on display, it is still on display here. It's a gift of Nicholas to J.C. Bose on his 70th birthday in 1928. National Gallery of Modern Art, NGMA there, NCSM unit, Mr. Culture there. The extended exhibition, they asked for a permission to extend the exhibition. And this one handmade, just behind your color, such intricate work. This is also a gift of Maharaja Tripura, Radha Krishna Kishore Manik, almost 70th birthday. 1928, we have restored that. So there are many things. What do you see? Acharya Bose stands as a monument of many-sided personality and athletic test of J.C. Bose. Acharya Bose's motto is a economy. This genius transcendent knowledge, scientist, literary artist, philosopher, and nationalist who realized the importance of development of science in India for national development, and that's why he is called father of modern science in India. And here you see, as I said, Times of India make a big story. July 3rd, we opened the door to visitors after a long time. Our everything, now what is our vision? This is the last movement. It was built in 1902. 1910 it used to look like that. And as English lady, she took a British lady to study and to go to teacher. Now in 2024, 12 to 2004, after the one has been transformed into J.C. Bose Science and Engineering. Now this is J.C. Bose Science and Engineering. From 2025, this we want to make it in this Acharya Science Heritage Gallery and Research Center. And this has been possible because of philanthropic support from individuals, corporate houses, and partial grant from the Ministry of Culture. Everything available there. And there are many constraints to maintain such museums, such old things more than 120 years, 25 years old, investor audience.
we have done it's paid a large quantum of money is required to save the heritage. আমার একটা বাংলায় কথা আছে, হিন্দুতে সিন্ধু, caution makes law. We appeal to all of you. It is your national property. It is the national heritage. It is the responsibility of all of us to save this heritage, science heritage of India. Okay? So, I appeal to all of you to help donate generously so that the legacy of J.C. Bose, an important part of history of modern science, real science can be preserved here. Thank you all for your gracious presence and all the participants, especially Korlo, with his active support that was possible to do it, and the information of India. We invite you all to visit now, not today, to see it. It will take 1 hour at least to see the museum. It's most to be thank you all. Okay. Thank you, madam, for delivering your marvelous lecture. Now, this is World Museum Day, and most important thing of this day is the participation of people or communities' participation in museum. So, এখন আমি অনুরোধ করব শ্রী সমর কুমার ঘোষালকে তার বক্তব্য রাখার জন্য আসার জন্য। সমর কুমার ঘোষাল, former Deputy Superintendent Archaeologist, Archaeological Survey of India, এবং ওনার বক্তব্যের মেইন থিম অফ হিজ লেকচার ইজ প্রবলেম ফেসড বাই দ্য মিউজিয়াম অ্যান্ড ইটস ওয়ে আউট। স্যার প্লিজ। ব্যক্তিগতভাবে ডক্টর শরৎ ঘোষকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। নমস্কার, আমার পরিচয় হলো দিয়েছে আর সেখান থেকে মনে হয় ICOM, International Council of Museums, a subsidiary association or organization of UNESCO. In 1977, they have declared that every year, 18th April, will be celebrated as International Museums Day. This year too, but for some reason we are today behind, but still we are with them. You can celebrate. We are celebrating the same thing. Last 18th, at least 148 countries in the world, more than 35,000 museums and their accessory organizations celebrated International Museums Day, and we are also part of that celebration. Now, any international day, week, or whatever it may be, when we call for that, it has a special meaning. First thing, we want to highlight a particular thing. We want to discuss that thing particularly on that day, and to bring the people all over the world who are attached with this subject, who are interested about this subject or handling this subject. This is a scope for us to come more close together and to interchange our things, our experiences with one another. That is the reason why we call it international. ICOM every year they used to give us a theme, a particular theme which should be highlighted on that day. This year their theme is the future of museums in rapidly changing communities. Actually, because of this Vishayan, so-called Vishayan, the economic pattern has been changed totally in the world environment. And war, refugees, etc., etc. For so many reasons, and
where many of the people has to leave their own place. They are going here or there, and naturally the small communities, their own cultures, they are losing. And now is the highest time or high time to somehow, what should I say, to restore these their cultures, their way of life, their daily life. Otherwise, it won't sustain. এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমি মাঝে আসছি, এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর যা চেহারা, একটা যুদ্ধের চেহারা, সবাই সবার সঙ্গে যুদ্ধে নামছেন, nobody can tolerate any other, সেরকম একটা অবস্থার মধ্যে let us come together, let us be friend together, কথাগুলো একটু ইয়ে মনে হয়, সুপারফিশিয়াল বলে মনে হয়, but we have to carry. যে কোনো জিনিস যদি টিকে থাকতে হয়, সাস্টেইন করতে হয়, he has to progress. Otherwise, that can't sustain. মানব সভ্যতাকেও যদি বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে তাকে প্রগতির রাস্তায় এগোতেই হবে। আর প্রগতি তখনই সম্ভব when we honor our culture, our heritages, and this repository of our culture as museums. Anyway, that's a big thing. I'm not going to that. Yeah? Let us discuss about the present condition of our country, museum, so far museum is concerned. It has a long history. In the earlier days, we used to, we know that the kings and royal persons used to maintain their painting house, which was Chitroshala. Then in the modern concept, museum, if you say today's museum, that is taken from Asiatic Society, then to Indian Museum, then other national museums like National Museum, Jaipur, Mathura, etc. And then come the ASI site museums. First China, then one after one. Now it has probably more than 50. Then comes museums sponsored by the royal people. Then comes the museum sponsored by the universities and the intellectuals, like our Bongiya Sahitya Parishad. And then comes so many things with particular subject, with particular organization, with private collections, etc., etc. And nowadays, in India, number of museums is more than 1,000. But I'm sorry to say, out of that, not more than 150 is running. You can say in its own rhythm. So why is situation? Other are doing what? Bakira ঢুকছে. Why? Lack of money, number of employees, যোগ্য পরিচালক, and the situation of the building itself and space for the building is not adequate. Number of visitors is minimized, and government non-cooperation, and last of all, the people who used to take initiative in these regards are not coming forward nowadays, whatever that is.
let us see in our own condition how we are handling museums. I can expect most of you or all of you are interested in museums, related with museums, know something about museums. But how much of you know that in Calcutta itself there are 43 registered museums? How much of you have seen that? I don't think. Do you have any idea about that? 42 museums. The nearest one is Bombay Sahitya Purishad. Have you ever seen anybody? I don't think. Only this in a TV, not the one. We have some evidence. There is Calcutta Corporation Museum. Corporation building is not there. We don't know where is that museum. Ashutosh Museum, Calcutta University. For long it is closed. Behala Museum, State Museum, it's not a haunted house. This is the position of this is the picture of Calcutta itself. Forget about the others. Sorry, I have to read it in Bengali because it is written in Bengali. Rabindranath Tagore 1930 সালে রাশিয়া গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি যে সমস্ত চিঠিগুলো লিখেছিলেন আমরা রাশিয়ার চিঠি বলে জানি। সেখানে তিনি লিখছেন এক রবীন্দ্রনাথ লিখছেন শিক্ষা ব্যাপারটাকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মিউজিয়াম। সে মিউজিয়াম আমাদের মতো অকারী, প্যাসিভ নয়, সকারী, অ্যাক্টিভ। রাশিয়ায় রিজিয়ান স্টাডি অর্থাৎ স্থানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি যখন লিখছেন সেই সময় রাশিয়ায় এই ধরনের ফিল্ড মিউজিয়ামস were more than 20,000 and their members were more than 70,000. এই সমস্ত লোকাল মিউজিয়ামগুলোতে কি থাকতো? সেই স্থানীয় বা সেই অঞ্চলের বর্তমান এবং প্রাচীন ইতিহাস, সেখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি, সেখানে কি ধরনের জিনিস চাষবাস হতে পারে, সেখানকার জলবায়ু কেমন, সেখানে জলের কতটা সংস্থান আছে বা কি ধরনের জলের সংস্থান আছে। এবং সেই সমস্ত মিউজিয়াম যারা দেখতে আসছে তারা আমাদের ভাষায় বলে আনপড়, অশিক্ষিত বা সামান্য শিক্ষা আছে, নিরক্ষর প্রায়। কিন্তু সেই রকম 70,000 লোক নিয়মিত এই মিউজিয়ামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। আমি এটা বললাম একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে তুলনা করার জন্য কি অবস্থায় আমরা আছি এবং এটাও বোঝাতে যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে তার প্রাসঙ্গিকতা, তার কন্টেম্পোরারিটি নেই, তা না হলে কোনো প্রতিষ্ঠানই টিকতে পারে না। আমরা বোঝাই যাচ্ছে যে মিউজিয়ামগুলোকে বা সাধারণ মানুষগুলোকে মিউজিয়ামের প্রতি আকর্ষিত করতে পারিনি। আমি আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ভারত সরকার আমাকে কিছুদিনের জন্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে পাঠিয়েছিলেন রান্নাবাদি করতে। তো সেখানে বেশ কিছু লোককে আমি মিট করেছিলাম যাদের অনেকেই আমার পূর্ব পরিচিত। তারা তাদের অভিজ্ঞতা বলছেন, ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে মিউজিয়াম দেখতে এসেছিলাম,
এখন নাতিকে নিয়ে বা ছেলেকে নিয়ে বিভিন্ন বয়সের লোক দেখতে এসেছে। নিজের উৎসাহে কোনোদিন আসে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মিউজিয়াম। হ্যাঁ, কেন হয়নি? কারণ অনেক। Why people are not interested to go to museum? To them, they used to think museum is exclusively for the scholars, the veteran people with high powered glass. They will go and they will research, they will have a with their magnifier, research. Not that. Museum has to be a place of attraction, has to be a place of amusement. But in our perception, we don't think in that way. We don't have a very good planning for a museum. Generally, a particular people or an organization, they got some material from whatsoever, they immediately stored that in a building which is available to them. That building may not suit for a museum. Even Indian museum, that building, it was made for some other administrative purpose. But at that time, it was necessary to transfer all those materials from Asiatic society that have been out in that building. So we don't have that type of building unless in Calcutta Science City came. We don't have any idea how the building will be. And Europeans are fortunate. Fortunate in what sense? You don't know. In Second World War, most of their museum buildings were smashed, and they got a chance to renovate their buildings accordingly as a museum. And next problem obviously is finance. All of us, whether it's a small museum or a local museum or big museums, we exclusively depending upon the government etc. And I am sorry to say, now we are passing through a time when it is better not to expect. First thing, I may be wrong, then please mercy me. The concept, welfare state concept, as not in our country at present. Next thing, priority. Where the priority will be given. In our country, the lowest budget are for two things. One is the education, another is the health. That itself says what our ideas of our so-called government. And very interestingly, I was just giving an example. IPL cricket, BCCA has profited in last year 11,000 crore rupees, but their tax were free. They don't have to pay any tax. But in your museum or in your college or in your library or in your laboratory, if you have to purchase something, you have to give GST, etc., and etc. So it is better not to expect any help from the government, at least now. টাকা না পেয়ে কি দশা হয়েছে চোখের সামনে গুরুসদা মিউজিয়াম তোমরা দেখছো। এটা কিন্তু শুধু আমাদের গল্প নয়। The same thing happened in Britain also. UK government once they thought that British Museum is a burden for them. They don't want to continue that one. And ultimately they have contacted one person with some conditions
that he will take the responsibility to generate his own revenues through which that museum will run. That Neil MacGregor, he came to that museum with some conditions. The first condition is the people will be of mind. He bought a key. And now, last year, more than 6 million visitors are visiting British Museum. Is the condition. এরপরে যেটা আসবো, আমি জানি না মিউজিয়াম নিয়ে তোমাদের কার কতটুকু ইয়ে আছে। Museum is what? A simple thing. You have to display the thing in such a way that it should look something special. In the sculpture, if it is just thrown in the side of the, nobody will bother. But bring it to the museum, display in a proper way, people give their attraction. রাস্তা ধারে একটা পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে, তাকেও দেখবে। শুনি এই টুকরোটাকে এনে সুন্দর করে ডিসপ্লে করে বলো যেটা একটা নিওলিথিক সেন্ট, নিওলিথিক সেন্টকে তাও সে জানে না, একটা ছবি এঁকে দেখাও সেটা কিভাবে ইউজ, 5 বার এসে ঘুরে দেবে। এটাই সাধারণ। আমি আমার অভিজ্ঞতা একটা বলছি। আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মিউজিয়ামে থাকতে হয়েছে এবং একটা সময় ইস্টার্ন মিউজিয়ামের সমস্ত মিউজিয়ামগুলো আমার দায়িত্ব ছিল। তো সেরকম একটা সময় আমি একটা মিউজিয়ামে পার্টিকুলারলি বিক্রমশিলা মিউজিয়াম, ওখানে খুব সুন্দর মূর্তি দেখেছিলাম। মূর্তি মানে ওই প্লাক যাকে বলে, স্টোন প্লাক। সেখানে কৃষ্ণ সুদামার গল্প দেখে মনে হয়েছে। তোকে আছে দেখে চলে যায়, তাকেও দেখে কৃষ্ণ সুদামা পেয়েছি। তো ওটা ছিল, ওটা পজিশনটা অনেকটা এরকম একটা প্রজেকশন এটা রাখা ছিল। তারপরের স্পেসটা ওইখানে খালি ছিল। আমি ওখানে একটা ছোট্ট ইয়ে তৈরি করে বানালাম, ছোট্ট ওই ছবিটাকে ছোট্ট ইয়ে করে কৃষ্ণ সুদামার গল্পটা, যে ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে কি জীর্ণ দশা চেহারায় পোশাকে, তার বন্ধু রাজা, তার মধ্যে ভীষণ নার্ভাসনেস ওখানে ঢুকতে, ইত্যাদি ইত্যাদি খুব সংক্ষেপে হিন্দিতে, বাংলায় ইংরেজিরা তার কারণ একটা ইন্টেরিয়ার তখনও আসা না যায়। লোকগুলো ক্রস করে চলে গেল, ওটা করলো আবার ঘুরে। মিউজিয়াম হবে এই লোক, একটা লোক মিউজিয়াম দেখে আবার আরেকদিন তার বন্ধুকে নিয়ে দেখতে আসবে, তবেই আমি বলবো আমার মিউজিয়াম সাজানোটা সম্ভব। তো আমরা সেটা জানি, কেন জানি না, কি এটা মিউজিয়াম কোনো জিনিসকে হাইলাইট করতে হলে you have to know lighting, you have to think about the movement of the visitors, that things should be, all the things should be compartmented. একসঙ্গে ইন্ডিয়ান একটা বিশাল উঁচু ঘরের মধ্যে অনেকগুলো ছোট 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 মূর্তি, কিছুই মানে না। আমি অন্তত বুঝি না তোমরা কি বলে। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের, আমি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বললাম দিচ্ছি, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নিন্দে করার জন্য না, আমাদের হাতে সবচেয়ে বড় মিউজিয়াম ওইটা, সেজন্য সেটাই বলছি। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের বারান্দায় দেখবে লাইন দিয়ে বোধিসত্ত্ব, তাকে এত বড় বড় গজাল দিয়ে ধরে রাখা আছে। গজালটা উল্লেখ করলাম, পুঁথিতে আনে ঠিক আছে, ধরে রাখা হয়েছে বোধিসত্ত্ব। হাজার হাজার লোক আসছে। বোধিসত্ত্ব কি বাবা চেটে খায় না, মাথায় দেয়, কেউ জানে না, কোথাও কিছু লেখা নেই। ওখানে ভারত গ্যালারি, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ফেমাস ফর ভারত গ্যালারি, কোথাও লেখা নেই যে পৃথিবীর কোথাও ভারত যুগের অস্তিত্বই নেই, যা কিছু আছে এখানে কোথাও লেখা নেই। ওখানে গিয়ে তুমি দেখে আসতে পারবে। ওখানে অন্তত কয়েকশো ইনস্ক্রিপশন আছে, তার অন্তত একটা দুটো ইনস্ক্রিপশন ট্রান্সলেট করে মানে লোকে একটি ইন্টারেস্ট, এবং ওখানে ওই ইনস্ক্রিপশনগুলোর মধ্যে অধিকাংশ শেষ হয়েছে দানব কথাটা। এবার এই দানব আমাদের শিখিয়েছে ব্রাহ্মী কিভাবে কি গল্প গল্প চায়, কোথাও নেই। এটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে করতে আমরা জানি না, we are not able to do that। কেন কাজ? হ্যাঁ
তাদের না অনেক স্তর আছে, শিক্ষিত লোক, উচ্চ শিক্ষিত লোক, একেবারে হ্যাঁ মাঝামাঝি সব রকম। আমাদের যখন তার ডিসপ্লে করতে হয় বা তার লেভেল তৈরি করতে হয়, তার ভাষা, তার এগুলো আমাদের মাথায় রেখে চলতে হয় যে আমাকে সব রকম লোকের জন্য আমি ভাবছি, সেটা আমরা করি। আরো একটা যেটা আমার খুব মনে হয়, বলে তোমাদের হয় কিনা জানি না, যে কোনো মিউজিয়াম, বিশেষ করে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামগুলোতে গেলে মনে হবে তখনকার দিনের লোকেরা ভাঙাচোরা মূর্তি পুজো করা এছাড়া তাদের আর কোনো কাজ ছিল। কোথাও তুমি দেখবে না তাদের ডে টু ডে ইউজের মেটেরিয়াল আর বা ইউটেন্সিলস। বাট এক্সকাভেশনে আমরা প্রচুর পাই, কেন সেগুলো দিয়ে করা হয় না? আমাদের কোথাও না কোথাও টেকনিকে কিঞ্চিত গন্ডগোল আছে, মানে সমালোচনা তো অনেক করলাম। হতে পারে কি করে? প্রথম কথাই হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে পাল্টাতে হবে। সম্ভব হলে মিউজিয়ামের স্পেস, আমি জানি না তোমরা দেখেছো কিনা কেউ, ওই মিউজিয়ামটার নাম কি বালান্দা মিউজিয়াম। একটা বাজারের মধ্যে একটা বাড়ি, দোতলা, তাও বাড়িটা কমপ্লিট হয়নি, একটা ঘরে কতগুলো জিনিস ইয়ে করে রাখা আছে। তোমাকে আমি জোর করে একবার নিয়ে গেলাম, তারপর দ্বিতীয়বার তুমি যাবে। সরকারি মিউজিয়াম, তমলুক মিউজিয়াম, একটা বাজারের মধ্যে দোতলায় করা আছে, তুমি দ্বিতীয়বার যাবে? যাবে না, অবস্থানটাই। এবং আমরা অনেক সময় ভাবি সরকারি ইয়ের কথা ভেবে, গ্রান্টের কথা ভেবে, যে গ্রান্টটা এইটুকু, তাহলে আমি সেইভাবেই ভাবি। তা ওরকম একবার ভাবতে গিয়ে ডক্টর শরৎ ঘোষ আমার প্রণম্য আমাকে খুব জোর ধমক দিয়েছে যে আর একটু বড় করে ভাবতে শেখো না, এখন পকেটে টাকা নেই, তুমি তোমার ভাবনাটা অনেস্টিক হোক, অনেক বড় চিন্তা হোক, তুমি তার পার্টটা করলে, জায়গাটা করলে, পরে এক্সটেন্ড করবে। যেরকম ভাবে মধ্যবিত্ত বাড়ি করতে হয়, এটা তুমি একটার মতো বাড়ি তার তো ব্যাংকলোর পেলেন না, একটু একটু করে বাড়াতে, তো সেরকম ভাবে পাবো না, পরে ওটা একটা বড় জায়গা নেই, কিন্তু প্রথমে একটু একটা জমি কিনে কি করবো, ব্যাপারটা তাই আমরা আমাদের ভাবতে হবে। কিন্তু বড় সমস্যা অনেক, অনেক কিছু, অনেক নিন্দে করলাম, অনেক কিছু করলাম, কিন্তু এর পরেও বলছি নিরাশ করে চলবে না। সময়টা হয়তো একটু খারাপ, কিন্তু এরকম তো চলতে পারে না, একদিন না একদিন হবে। এবং এই ধরনের ব্যাপারগুলো তখনই সম্ভব হয় যখন গোটা ব্যাপারটা না একটা সামাজিক আন্দোলনের পথ নেয়। আর সামাজিক আন্দোলন তখনই সফল হতে পারে যখন তাতে ইয়াং এবং স্টুডেন্টসরা অংশ নেয়। তখনই যে কোনো আন্দোলন একটা গতি পায়, মোমেন্টাম। তাই ওই শেষ করার আগে শেষ কথা, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, আমরা যা অন্যায় করেছি আমরা মাফ করে দাও, কিন্তু তোমরা দায়িত্ব নাও। থ্যাংক ইউ। সরি, আমি অনেকটাই বাংলা, they will translate it to you. Okay? Thank you. Thank you, sir. মিউজিয়াম হতে পারে অনেক সমস্যা আছে, so many problems, তার থেকে বেরোবারও রাস্তা আছে। সুতরাং নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আগামী দিনে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনের উপর নির্ভর না করেও বহু ক্ষেত্রে লার্জ নাম্বার অফ পিপল তারা পার্সোনালি তাদের মিউজিয়াম ডেভেলপ করেছে। একটা উত্তর দিতে পারি তোমারটা? হ্যাঁ। উত্তর দিয়ে এটা শোনো, মিউজিয়াম ডেভেলপমেন্ট করার অনেক ইয়ে আছে। ইভেন philanthropic support from the corporate houses, CSR support যেটা, সেটা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, সেটা প্রাইম মিনিস্টারের ফান্ড দিলে দিতে হয় এখন। They cannot spend this money for other purpose. So why this? আমাদের তোমার যদি কর্পোরেট সাপোর্ট থাকা নেওয়ার ইয়ে থাকে, সেগুলি নেই। আগে কর্পোরেট অনেক জায়গায় আমি দেখেছি, হেরিটেজ বিল্ডিং, হেরিটেজ সেফটির জন্য অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে। দাদা আমি বলছি ইউনিভার্সিটিতেই একটা মিউজিয়াম আছে, আচ্ছা খোলাই হয়। সো কর্পোরেট আমরা যোগ করে ফেলেছি এইটুকুই বলতে পারি। তো former director conservation National Museum New Delhi, former consultant Indian Museum Kolkata, and proprietor Heritage Care Conservation Preserving Memories Museum and its Management. He delivered his lecture on museum and its management. So sir, please.
स्टार्ट करें। for inviting me for this lecture. So many thanks. आप सभी लोग शायद आर्कियोलॉजी के पढ़े हैं? नॉट ओनली आर्कियोलॉजी सर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड अच्छा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, what is a museum and what is the purpose of that those museums? और म्यूजियम का कलेक्शन क्या है, किसके लिए, क्यों म्यूजियम बना है, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट दोज म्यूजियम कलेक्शन, और कलेक्शन का मटेरियल क्या है, और उस मटेरियल के डैमेजिंग फैक्टर्स क्या है, एंड हाउ टू कंट्रोल दैट दोज डैमेजिंग फैक्टर्स। मेरा लेक्चर इसी के आसपास होगा। एंड देन एट लास्ट आई लर्न मैनी वर्ड्स, मे बी थाउजेंड्स। तो उसमें से कुछ जो मेरे रिसेंट वर्क है, मैं वहाँ इनका फोटो लाया हूँ, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट फॉर नेशन। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी, चाय बाद में पीते हैं, ये आगे चलता है। अच्छा, हाँ, दिस इज द डेफिनेशन बाय ICOM. Everybody knows what is ICOM? International Council of Museum. And I think everybody knows this definition. So no need to revise it again and again. Basic function of a museum. Start में चलते हैं time कम। Acquire the objects, conserve the objects, research and display. ये कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। उल्टा ये हो जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आप परचेज कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट में हैव सम प्रॉब्लम, तो पहले आप एक्विजिशन में नहीं बेचते हैं, पहले आप कंजर्वेशन में बेचते हैं टू ट्रीट इट प्रॉपर्ली। अगर आपने ऐसे ही अपने कलेक्शन में बेच दिया तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो प्रॉब्लम है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में चला जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स कि कंडीशन क्या है उस ऑब्जेक्ट की, पहले एक्विजिशन करेंगे कि पहले कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। These are the aims, basic definition of इसको क्या है, अपनी पॉलिसीज बनाइए, कलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनाइए, ये रिसर्च करिए। रिसर्च में क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, फिर ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक के पास जानी है। गैलरी प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ टेम्पररी ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात एक बात जो आप लोगों को समझ लेनी है, मेरे सारे लोगों को, सीनियर को भी समझ लेनी है। लोग समझते हैं कंजर्वेशन एक बार कर दिया फाइनल, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इट विल डिपेंड, एफिकेसी विल डिपेंड कि हम उसको इन्वायरमेंट क्या देते हैं और हम कितना अपने आप को उस ऑब्जेक्ट की डेडिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत से लोगों को मैंने लाइफ में सुना, अराउंड 45 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए ऑन डिफरेंट फील्ड, लेकिन क्या बोलते हैं, अरे इसका कंजर्वेशन तो करा दिया, क्यों खराब हो रहा है। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि अगर आपने उसको डिस्प्ले गाइडेंस नहीं किया, इन्वायरमेंटल कंडीशन आपने ठीक से नहीं की, प्रोवाइड नहीं करी, तो वो नेचुरली एक दिन करने के अगले दिन से डिटेरिएशन शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन कि हमने उसको कंजर्वेशन कर दिया। अदर फंक्शंस क्या है, पब्लिक सर्विस, सोसाइटी की सर्विस करें, कैसे करेंगे कि वो उनको एग्जीबिशन के थ्रू दिखाएं, उनको उसके बारे में बताएं, और अपने म्यूजियम की आपको अगर इमेज संभालनी है तो भी आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोग्राम करने पड़ेंगे, जैसे आज मैडम ने ऑर्गेनाइज किया, बुलाना पड़ेगा, लोग समझेंगे। अगर आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल है तो आप अगली बार अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएंगे, नहीं चलो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, हम लोग का नॉलेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप विजिटर्स फैसिलिटीज़, एक रिसेंट में गवर्नमेंट ने जोड़ा है, 14 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया था उन्होंने कि आप विजिटर को बुलाते हो, उसको पीने का पानी भी नहीं देते, तो कोई क्यों आएगा आपके वहाँ। तो उन्होंने हम लोग के ऊपर प्रेशर डाला कि ये सारी फैसिलिटीज़ विजिटर को देखिए, वो जाके पार्क में जाए, वो सिनेमा देखने ना जाए, उसको सारी फैसिलिटीज यहाँ दीजिए, वो ऑब्जेक्ट के पास है। उसमें क्या क्या है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, गुड कैफेटेरिया दीजिए, वॉशरूम दीजिए, पार्किंग स्पेस दीजिए, चिल्ड्रेंस कॉर्नर दीजिए, ऑनलाइन टिकट्स करिए कि वो आके लाइन ना लगाए, और गाइड फैसिलिटी दीजिए। कोई आदमी हो जो साथ में जाकर उनको समझाए कि हमारा म्यूजियम क्या है और हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है। और हम बड़े आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर ये सब हो रहा है, और एक्चुअली जो भी इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते धीरे धीरे होगा, बट ट्राई टू डू इट। एक्वायरिंग दी ऑब्जेक्ट कहाँ से लेते हैं,
आप देख लीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। B2 मिल सकता है, लोन मिल सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, एक्सप्लोरेशन हो सकता है, एक्सकेवेशन हो सकता है, लेकिन स्मगलिंग वाले ऑब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, चोरी वाले ऑब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। ठीक है, कलेक्शन ऑफ म्यूजियम थस डिपेंड्स अपॉन द मिशन, विजन, इस म्यूजियम का क्या मिशन है, क्या विजन है, इनको साइंटिफिक आर्टिफैक्ट चाहिए होंगे। और ये ऑब्जेक्ट है, रिसर्च करिए, एजुकेशन के लिए तैयार करिए, कंजर्वेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा। पॉइंटर है। ठीक है, अच्छा ठीक है। A museum must not collect anything from theft, small or very much fragile objects. कई बार जब म्यूजियम की कमेटी बैठी तो परचेज, जिसको परचेज कमेटी कहते हैं, उसमें कंजर्वेटर को जरूर बुलाया जाता है। आई वॉज ऑलवेज इन्वाइटेड करें एक इस ऑब्जेक्ट को हम अपने म्यूजियम में लें, क्या ये आगे सर्वाइव कर पाएगा, आप इसको ट्रीट कर पाओगे, स्केल में बना पाओगे, और अगर नहीं बना सकते तो देना ही। तो इस पर भी डिपेंड करता है ये भी स्टेबिलिटी के लिए। फिर वही प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। हाँ, आप ये लेते रहो, वो तो ले सकते हो, जनरली कि शायद ये डेफिनेशन सही चीज़ें ना मिले। Objects needs regular care. Every object is subjected to deterioration at any point of time. मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके पोजीशन में ऑब्जेक्ट आया या जहाँ पे हुआ, हम ये भी कह सकते हैं आज ऑब्जेक्ट अगर बनाया गया तो अगले क्षण से डिटेरिएशन शुरू हो जाएगा उसमें। मेरा अपना जो मेरी स्टडी है या मैंने जिसको नॉलेज किया है, सिल्वर या मेटल ऑब्जेक्ट जो है 0.44 सेकेंड में डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। तो आप सोचिए, और ये ऑक्सीडेशन बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत खराब भी चीज़ है। अच्छी चीज़ इसलिए है कि जो भी ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है हमारे मेटल के साथ पर्टिकुलरली, वो उसके ऊपर एक चीज़ बनाता है, एक लेयर बनाता है जिसको हम लोग पैटिना कहते हैं। पैटिना में भी प्रोटेक्टिव इन नेचर, इसलिए अगर एक बार ऑक्सीडेशन हो गया 2 साल 3 साल में पतली लेयर बन गई तो वो प्रोटेक्टिव होगा। बट मैनी टाइम्स देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स। अगर क्लोराइड सब ये मैं ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि अगर क्लोराइड से एक्सकवेशन से ऑब्जेक्ट निकला है तो जो जमीन में सॉल्ट्स हैं वो उसके अंदर चले गए होते हैं, और अगर वहाँ क्लोराइड है तो क्लोराइड की प्रॉब्लम ये है कि विद द ह्यूमिडिटी ये एसिड प्रोड्यूस करता है। उसको हम इस तरह के कॉपर के केस में इस बीमारी को बोलते हैं ब्रॉन डिजीज या ब्रॉन्ज कैंसर। क्यों कैंसर बोलते हैं? क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी लग गई तो जब तक मेटेरियल को ख़त्म नहीं कर लेगी तब तक ये कांडी में रहेगी। और इसके लिए फिर कंजर्वेशन की स्पेशल टेक्निक है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, और हम एटमॉस्फेयर का रिएक्शन मेटल के साथ ब्लॉक कर देते हैं। तो 2 तरह के, एक को बोलते हैं नोबेल पैटिना जो प्रोटेक्टिव नेचर है, एंड अनदर इज मैलिग्नेंट या ब्रॉन्ज कैंसर या उसको ब्राउन डिजीज बोलते हैं। इसके ये 3 टेक्निक है। तो regular care in the museum objects practices various preservation techniques which are excluded object is specific। अब आप बोले कि मुझे एक फार्मूला बता दीजिए जो मैं हर तरह के ऑब्जेक्ट को ट्रीटमेंट दे दूँ, कोई फार्मूला नहीं। That will depend on the material of the object and also extent of deterioration, कितना वो डैमेज हो चुका है। जैसे कॉपर के केस में मैं अभी बता रहा था, तो कॉपर पे अगर नोबेल पैटिना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका ब्रॉन डिजीज इसमें आ रहा, और ब्रॉन डिजीज की पहचान क्या है कि वो पाउडर फॉर्म में बाहर वो रिएक्शन प्रोडक्ट निकलता रहता है, ग्रीन कलर पे, येलो कलर। आप उसको हटा दीजिएगा एक दिन, अगले दिन वो फिर आ जाएगा क्योंकि वो अंदर मेटल के साथ रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अब आपका उसमें क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ये करनी है कि मेटल का इन्वायरमेंट के साथ किसी भी तरीके से रिएक्शन को काट दीजिए। मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो अंदर मेटल तक जारी है उसको ब्लॉक कर दीजिए, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और मैंने इस तरह के हज़ारों केस किए हैं। मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक्चुअली कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मैंने कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया कि मैंने कितने ऑब्जेक्ट किए।
उसका कारण क्या है कि आई स्टार्टेड फ्रॉम नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन लखनऊ, और वहाँ पे आज से 20-25 साल पहले ASI के जितने भी एक्सकेवेटेड ऑब्जेक्ट आते थे वो सब वो NRLC को भेजा करते थे। तो उसमें पता लगा कि उन्होंने ऊपर लिखे गया था हैंडेड कॉइन ऑफ सिल्वर, और हमारी ट्रीटमेंट के बाद में पता लगा उसमें कुछ गोल्ड भी निकला, कॉपर निकला। क्योंकि ये जो ग्रीन करोजन प्रोडक्ट है ये आपको हमेशा डाउट में डालेगा कि एक्चुअल मेटल क्या है। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इसलिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा। डॉक्यूमेंटेशन आप सब लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, है ना, कैसे करते हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब म्यूजियम रिसर्च आप क्यों करते हो? आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट की पूरी कुंडली बनानी है, उसको बोलते हैं, है ना, और वो कुंडली बना के आप पब्लिकेशन करिए और पब्लिक तक पहुँचाइए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है। शायद मैं आज से 5 साल पहले इस म्यूजियम को नहीं जानता, वो तो मैडम का है, इन्होंने इंडियन म्यूजियम को लिखा और इंडियन म्यूजियम ने मुझे बोला कि आप जाके देखो और क्या है और कैसे है, ठीक है। तो ये जरूरी चीज़ें हैं। मैंने उनको बोला है जल्दी खत्म करूँगा। स्टोरेज हमारे 90% म्यूजियम क्या है, स्टोरेज कबाड़ खाना। इसने किसने म्यूजियम का स्टोरेज देखा है? किसी ने नहीं देखा। इस म्यूजियम का स्टोरेज देखिए सामने ही, इसको बोलते विजुअल स्टोरेज। आप चीज़ों को सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर बाकी म्यूजियम्स में जाइए जो थोड़े बड़े म्यूजियम हैं, उन्होंने अपना गर्म करके रखा हुआ, उनको उसमें आयरन भी है, उसमें स्टोन भी है, उसमें सब कुछ, एंड दे आर कंटिन्यूसली डैमेजिंग। किसी को फुर्सत नहीं है कि वो अपने स्टोरेज को बढ़िया बनाइए। स्टोरेज को आप देख नहीं पाते, पब्लिक देख नहीं पाती। स्टोरेज लगे किचन कि सब कुछ काट के वहाँ डाल दिया। जो एग्जीबिशन में है उसको आप ठीक से देख पाते हो, एप्रिशिएट कर पाते हो, लेकिन जो अंदर डैमेज है उसको कौन देखेगा? कंजर्वेटर। और मैंने इतने स्टोरेज देखे हैं और लोगों की ऐसी तैसी, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, कि ये कोई तरीका नहीं है आपका रखने का। और मैंने उसको ठीक कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल म्यूजियम इन अल्मोड़ा और अपना नेशनल म्यूजियम तक। हमारे दीदी आए थे, मैं बार बार उनका नाम कहता हूँ, हम केरला, वो और मैं एक चीज़ अंदर से हट पाई। लकड़ी टूट गई, कुर्सी टूट गई, स्टोर, कुछ भी टूट गया, स्टोर, मेज टूट गई, स्टोर में। अरे कल को आग लगेगी कि ये तो फेल हो, अब क्यों अंदर में रखे हुए? तो हम लोग ये चीज़ें वहाँ पर किया करते। तो स्टोरेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द कलेक्शन। और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप का स्टोरेज होना चाहिए। आप पेंटिंग और स्टोन और मेटल टेक्सटाइल एक ही जगह डंप नहीं कर सकते। आजकल की हमारे थोड़ा सुधार हो रहा है, बट स्टिल देयर आर वेरी बैड सिचुएशन। हाँ बोलिए। रियल तो होता नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं डैमेज होती हैं जिनको हम प्रॉपर म्यूजियम में शो नहीं कर सकते पर पब्लिक। तो म्यूजियम स्टोरेज में तो वो चीज़ें रखी जाती हैं, एज उसका कॉपी रखा जाता है। नो, कॉपी म्यूजियम के अंदर होनी नहीं चाहिए, ना तो स्टोरेज में और ना तो आपका एग्जीबिशन में। कॉपी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई चीज़ लिया है और आपके पास नहीं है, आप किसी ने गौरव किया, किसी से उधार मांग लिया कि भाई हमें कॉपी दे दो, तब तो आप लगाइए और आपको लिखना पड़ेगा ये कॉपी है और कहाँ से। अदरवाइज म्यूजियम के अंदर कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है जो डुप्लीकेट है, ठीक है। इट शुड बी रेगुलरली सुपरवाइज टू क्लीन। स्टोरेज के बारे में बोल रहे हैं। कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंट्रोल इल्यूमिनेशन। मैं आगे बोलूँगा, ये क्या वर्ड मैं बोल रहा हूँ आगे आएगा। केयर फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स। एक म्यूजियम है जिसका नाम है स्टेट म्यूजियम लखनऊ। मैं उस समय थोड़ा टाइम लगेगा, चलो जी ये प्लीज परमिट मी टू एक्सप्लेन। नो प्रॉब्लम सर। तो मैं वहाँ था तो एक डायरेक्टर का फोन गया, बोला देखिए मैडम कितनी हंसी की बात है। उन्होंने बोला एक हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसे पानी टपक रहा है,
कहते सर पानी कैसे, मैंने उनको बोला सर नेचुरली इसके अंदर सॉल्ट होगा। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा, आप थोड़ा जल्दी से आके इसको देखो। मैंने परमिशन लिया, एमरजेंसी डायरेक्टर बोला मैं जा रहा हूँ म्यूजियम, आई वांट टू चेक दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखा तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है, सॉल्ट है, एक्सकवेशन के बाद इसको डिसैलिनेशन नहीं किया गया है, वो हवा से मॉइस्चर, आपका कॉमन साल जो खाते हो क्या होता है बरसात के दिनों में गीला हो गया है ना, वही उसमें जब घुसा हुआ था तो वही हो रहा था, और वो एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर पानी दे रहा था, और उनको लग रहा था शंकर भगवान की कृपा हो। तो उसको मैंने ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद उसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जो भी आज तक कुछ भी पानी नहीं हुआ, शंकर भगवान महाराज हो। तो और उसके बाद सबसे ज़्यादा डैमेज किसी भी चीज़ का कहाँ होता है, स्टोर। 24 घंटे के अंदर टर्माइट आके किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर देते, आप समझ ही नहीं पाओगे। मैं कलकत्ता में एक म्यूजियम की बात बोलूँगा, लाइब्रेरी में कि स्टील की अलमीरा में बुक रखी हुई, और उसको जो है वहाँ से टर्माइट स्टील पे चढ़ते मैडम, और अंदर की बुक्स खा गया। वो अगले दिन लाइब्रेरियन बोला सर आप जल्दी से आइए, क्या हो गया? अरे टर्माइट लग गया, वो बुक्स खा गया। टर्माइट कैसे लगा स्टील में? और आम ही जानी ना अपनी आस तो भाई जाके देखते देखा, तो नेचुरली ये भी मेरे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस था कि स्टील के अंदर हो गई टर्माइट, और 3-4 बुक्स को चट कर। फॉर्चुनेटली वो बुक्स तो रिसेंट बुक्स थी, तो हम लोगों ने रिप्लेस कर दी, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो रेगुलर केयर इन स्टोर एंड एग्जीबिशन इज मस्ट। एवरी डे आप जाइए, देखिए मेरे ऑब्जेक्ट सुबह में ठीक है, शाम को ठीक है, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन? आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को अभी पूछेगा, मैं खत्म करूँगा फिर आपके क्वेश्चन के बाद। स्टेबिलिटी हो गया, अब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, रिसर्च हो गया, एजुकेशनल एक्टिविटीज़। आप सबको पता है कि म्यूजियम किसके लिए, पब्लिक के लिए, तो आपकी एक ड्यूटी है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बनाए रखते हैं, जैसे आज होता है, ठीक है। सिक्योरिटी, म्यूजियम कलेक्शन, सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन सो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नीड्स टू बी डेवलप्ड बाय म्यूजियम अगेंस्ट वैंडलिज्म। कहीं मैं काम कर रहा था और मेरे टूल्स रखे थे म्यूजियम में, तो ईद का दिन था, बहुत भीड़ थी, आ गए और उठाया उन्होंने, और शुरू को मैंने भाई क्या कर रहे हैं, मैंने कहा जो तुम कर रहे हो वही हम कर रहे हैं, उसका जवाब जो तुम कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। मैंने पुलिस को बोला, मैंने इसको बाहर करो, जो भी टिकट कर दिया बाबा यहाँ से, इसका रिप्लाई मेरे पास नहीं। और सीसीटीवी वगैरह आप सब लोगों को मालूम है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इंडियन म्यूजियम में एक बड़ी खासियत है, उनकी पेंटिंग गैलरी में हर पेंटिंग के साथ उन्होंने कुछ डिवाइस रखी हुई, उस पेंटिंग को अगर उतारना चाहेंगे तो अलार्म रखना चाहिए। पब्लिकेशन भी म्यूजियम की ड्यूटी है, कैटलॉग बनाइए, लोगों को दीजिए, उसे होगा। म्यूजियम आल्सो पब्लिशर्स बुलेटिन वगैरह, पब्लिकेशन जरूरी है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये सब कि विजिटर्स को, स्कॉलर को आपके म्यूजियम के बारे में, आपके ऑब्जेक्ट के बारे में पता चले। आउटरीच एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ये चलते रहना चाहिए, इससे आपके म्यूजियम की इमेज सुधरती है और लोगों को मालूम होता है कि इनके पास क्या है और हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ जाकर मिल सकते हैं। लेक्चर सेमिनार चल रहा है, वाई टू कंसर्न। अब मेरे अपने प्रोफेशन के क्वेश्चन है, वाई टू कंसर्न, क्यों कंसर्न करें, खत्म हो गए, क्या दिक्कत है? एनी आंसर? एक मिनट मैं फिर आपको अपने आप मेरे पास आएगा, जिसमें लेने क्योंकि सबका टाइम हम नहीं बैठे हुए हैं। नहीं सर, आप लोग तो वाई टू कंसर्न में ये जो ऑब्जेक्ट है दे आर प्राइमरी सोर्स मेटेरियल ऑफ हिस्ट्री, इन्हीं के उस पर हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है, इसलिए आपका कंसर्न करना जरूरी है, अदरवाइज आप क्राइम में फंसेंगे। ये ऑब्जेक्ट में क्या मिलेगा आपको? रिचुअल्स मिलेंगे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मिलेंगे, रिलीजियस मिलेगा, कल्चरल हिस्ट्री मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी।
इट इज एन इनवेलेबल एंड इनरिकवरेबल लेगेसी। आप सब लोग हिस्ट्री के लोग हैं ना, मोहम्मद तुगलक दिल्ली से दौड़ता हुआ अच्छे खासे सिक्के मेरे लिए चल रहे थे, उसने चमड़े ही चलाने का इकोनॉमी खराब कर दी। तो इससे गुप्ता पीरियड गोल्ड पर वो अपने आप रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी इकोनॉमी कितनी जगह है। इसलिए ये भी एक रिफ्लेक्शन है यहाँ पे कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। कंजर्वेटर क्या करता है? कंजर्वेटर क्या करता है? रिविलेशन, इन्वेस्टिगेशन। कंजर्वेटर भी इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, आपको कौन सा में कह रहा है, उसकी एनालिसिस, प्रॉब्लम क्या है, ये सारा, और उसके बाद रिजर्वेशन में आते हैं। अब ये मैंने इसके वो लिखे डेफिनेशंस कि रिजर्वेशन क्या है, एक्सप्लेनिंग एंड एक्सपोजिंग द ऑब्जेक्ट टू रिवील इट्स ओरिजिनल। मैं आपको बताऊँ, मैंने कई जगह ऐसे काम किए जहाँ पर मैडम वो हिस्ट्री को अल्मोड़ा म्यूजियम में काम कर रहे थे, उसके पीछे जो इंस्क्रिप्शन निकला तो वहाँ के जो चांसलर थे, वाइस चांसलर, वो सब लोग यूनाइटेड थे। उन्होंने बताया अब अल्मोड़ा रीजन की हिस्ट्री 300 साल पीछे चली गई है, मतलब और एंशिएंट हिस्ट्री है। तो इंस्क्रिप्शन ये जो भी चीज़ है उसको अगर हम रिव्यू करते हैं तो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं टूल्स की कॉन्सेप्ट हिस्ट्री। इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च करें, एनालाइज करें, मटीरियल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज क्या है, और मेटल है क्या। सोना तो दिख रहा है, कल मैं जब काम कर रहा था वहाँ तो ऊपर से सोना चढ़ा हुआ, जो भी सीधे जो खड़ा थे ऊपर से सोना चढ़ाया, सोना नहीं है वो, मैंने उनको बताया सोना नहीं है, ये ऊपर से जस्ट उन्होंने एक लेयर डाल दी, पेंटिंग जिसको बोलते हैं, अंदर में वही कॉपर दिख रहा है। कल मुझे मत बोलना भाई कहाँ गया सोना, देख लो अभी तो उन्होंने नहीं, अब हम असली सोना चढ़ाएंगे, तुम्हारी बात। और तब प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन में देखिए मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी तो आप सबको समझ में आ रही है, इस प्रेजेंट फिजिकल एंड केमिकल फॉर्म को हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, प्रिवेंटिंग एनी फर्दर डिटेरियोरेशन। तो हम वहाँ पे डिटेरियोरेशन को स्टॉप करते हैं क्या, स्टॉप करते हैं क्या प्रिजर्वेशन के थ्रू प्रॉब्लम्स को? नो, वी कांट डू। हम उसको स्लो डाउन करते हैं डिटेरियोरेशन प्रोसेस को, हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम उन कारणों को, उन फैक्टर्स को मैनेज करने की कोशिश करें जो डिटेरियोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मटीरियल्स ऑफ एंटिक्विटीज। अच्छा, अब एक बात सबसे जरूरी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो म्यूजियम के ऑब्जेक्ट हैं हम लोग उनको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, एक इनऑर्गेनिक मटीरियल और एक ऑर्गेनिक मटीरियल और एक कंपोजिट। इनऑर्गेनिक मटीरियल क्या है? जिनमें कभी भी लाइफ नहीं रही, ठीक है, जैसे कि स्टोन मेटल्स, वो कभी भी उनमें लाइफ नहीं। ऑर्गेनिक मटीरियल क्या है? इनमें लाइफ की है। पेड़, हम तो जहाँ बैठे हैं इन्होंने तो प्रूव किया कि लाइफ होती है प्लांट्स, इन्होंने प्रूव किया कि प्लांट्स में लाइफ होती है। और वो जब लाइफ खत्म हुई, जो बकरी बनी, उससे जो कुछ बनाया गया वो ऑर्गेनिक मटीरियल। हाथी मर गया, उसका दांत का जो कुछ भी बनाया गया वो ऑर्गेनिक मटीरियल है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑर्गेनिक मटीरियल पहले भी और अभी मॉइस्चर को ये लीक करते हैं इन्वायरमेंट, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक मटीरियल के बाद ये प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इन दोनों चीज़ों को मिला के कोई चीज़ बनाएंगे जिसको हम लोग कंपोजिट मटीरियल करते हैं तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। टेक्सटाइल जिसमें मेटल थे, बनारसी साड़ी, तो उसका मेटल तो रिएक्ट नहीं करेगा विद द इन्वायरमेंट, बट उसका जो सिल्क है वो रिएक्ट करेगा और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब कंपोजिट इकोनोग्राफिक मटीरियल, शीशा भी लगाया और बैगो भी लगाया और ये लगा, बैम्बू तो रिएक्ट करेगा चेंजिंग कंडीशन में, बट शीशा थोड़ी करेगा, मेटल थोड़ी करेगा, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनको कैसे, ये है एजेंट्स ऑफ क्या क्या है, लाइफ डैमेज करती है, पता है लाइफ डैमेज करती है। इस पर एक छोटी सी मैं फिर कहानी आपको सुनाता हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल में जब मैं था तो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लाइफ डायरेक्ट क्या कहते हैं वो आए,
नाम भी लेने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी रिटायर है, मैं भी रिटायर हूँ, प्रोफेसर मजूमदार, सरस्वती मजूमदार, ठीक है। वो आई, उनको हमारे डायरेक्टर ने बोला देखो तुम थोड़ा कलकत्ता ले लेके कि लाइट नहीं थी, और मैडम उन्होंने बढ़िया 8-10 बच्चियाँ थी, उनको लेके बढ़िया सी लाइट वाइट लगा दिया, वो किया। डायरेक्टर ने मुझसे क्या बोला, तुम जाके देखो क्या हो रहा है, ये आपकी ड्यूटी है, आप जाके देखो, नहीं तो मैं बाद में आपको पकड़ूंगा। मैं वहाँ गया और मैंने जब देखा तो हाई इंटेंसिटी की लाइट है, तो और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा मैडम ये नहीं चलेगा। बोले आप कौन? क्योंकि डायरेक्टर ने इन्वाइट किया था देखिए, और मैं जाके वहाँ बोला भरना में चले वो मेरे को तो गुस्सा हो गया। मैंने उनको बोला मैं यहाँ का प्रेजर्वेशन हेड हूँ, तो बोले आप क्यों बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ लिखा है कि ये लाइट नुकसान करती है। अब मुझे बहुत गुस्सा मुझे भी आया, पर दिन जो है मैं उनको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैडम ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में लिखा है कि आपको कितनी लाइट देनी है, लेकिन जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उससे आपका ये लेक्चर भी रिलेटेड है। तो वो बोले कि आप मेरे को पब्लिकेशन दीजिए। पहले उससे पहले ये जब तक हम इसको बोलते कि जाके गैरेज काउंसिल के पेज नंबर इतना इतना को जिराक्स कराओ, उतनी देर में मैडम पहुँचे मेरे डायरेक्टर के पास। कौन आदमी नीचे गया था, बोल रहा लाइट ज़्यादा ये ज़्यादा, अरे आपको ठीक दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा हम ठीक दिखने के जिम्मेदार नहीं, हमको लक्स लेवल मेंटेन करना है, उससे ऊपर मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। अच्छा आप मुझे अलाउ करेंगे ना? तो जाके मेरी शिकायत की, तो डायरेक्टर तो हंसी थोड़े से, बोले ठीक है मैं उनको बुलाता हूँ। मेरे से बोले भाई क्या बोल दिया था? मैं कहा सर जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म्स है वही बोल रहा हूँ। तो तब तक वो जीरोक्स आ गया, मैंने उनको पकड़ाया, मैंने देखी है गैरी थॉमसन जिसने लाइटिंग में बहुत पहले रिसर्च की थी, उसकी ये रिकमेंडेशन है और ये आईकॉन ने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा मेरे को तो ये मालूम नहीं था। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उन्होंने अपने बीटेक इंजीनियर लाइटिंग वाले और ये सारे बच्चों के एमटेक वालों को मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया। जहाँ मैं इससे पहले नहीं जानती थी कि लाइट भी डैमेज करती है। आप सबको जान लेना है कि लाइट लक्स लेवल का एक लिमिट है, उसके ऊपर जाएंगे डैमेज होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि कितने तरह की तो डैमेज नहीं होगा, नहीं डैमेज होगा, डैमेज हर समय होगा। लेकिन आप जितना कंट्रोल, अगर आपने 50 लक्स से नीचे किया पेंटिंग वगैरह में, तो आपका कलर आइडेंटिफिकेशन गड़बड़ हो जाएगा। जो डिफरेंट टाइप के कलर आप देखते हैं वो 50 लक्स के आसपास में ठीक से दिखते हैं। उसके ऊपर जाओगे डैमेज है, उसके नीचे जाओगे तो आप कलर बदलाने हो जाएंगे, तो आपको कलर्स नहीं दिखेंगे। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि इनकरेक्ट लाइट। अब आप बोलिए ह्यूमिडिटी, मैंने यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आगे वाटर लिखा। वाटर किसी भी फॉर्म में ऑब्जेक्ट को डैमेज करेगा, चाहे वो आइस हो, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वाटर पेपर से। अब ये RS का मतलब कौन समझता है? एक्सेप्ट हमारे अनिल बाबू बोलिए। RS का मतलब है फुल फॉर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो क्या होती है? एक लकड़ी का आइटम, एक ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द आउटर मार्शल, जो ऑब्जेक्ट है आगे ये लकड़ी है, इसके अंदर नेचुरली कोई ना कोई इसके अंदर में मॉइस्चर है और हर ऑर्गेनिक मटेरियल में कोई ना कोई मॉइस्चर है। और बाहर में अगर रेनी सीजन हो गया तो ये मॉइस्चर लेवल जिसके अंदर, उसके बाद भी इसको ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और बाहर ड्राई हो गया तो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब की वो भी जाएगी और अंदर की भी चली जाएगी। और ऑर्गेनिक मटेरियल में मॉइस्चर का एक लिमिट में होना उसको स्टेबिलिटी करता है। तो इसका मतलब है मॉइस्चर का एक लेवल हमको मेंटेन करना पड़ेगा, और वो लेवल को इंटरनेशनल लेवल पे क्या बताया गया है, दैट इज 50% RH बोलते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज है, अंदर में जितना बाहर में जितना इनका परसेंटेज, इसकी कोई यूनिट नहीं। तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, रिलेटिव मीनिंग, ठीक है। ये बहुत जरूरी, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग फैक्टर ये और लाइट है। इसके डैमेज को आप किसी तरह मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जो लाइट का डैमेज है वो पर डे डैमेज इज कंटिन्यू और वो लगातार डैमेज करता जा रहा है। तो आप उस डैमेज को आज 5% हुआ, कल 2% हुआ तो
60% हो जाएगा, परसों 5% हो गया, ज़्यादा लाइट जला दी तो 10% हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लाइट को कम कर दें तो पीछे जो डैमेज हो इसे कंटिन्यूस प्रोसेस। और वो लाइट करती क्या है, अगर आपने हाई इंटेंसिटी लाइट कर दी तो करेगी क्या? पेपर क्या है, बहुत लंबा होता है। पेपर जो है, पेपर क्या है, इस पेपर मुझे फाइबरस नहीं, तो जब फाइबर को जोड़ जोड़ के हमने पेपर बनाया या टेक्सटाइल बनाया, तो ये लाइट क्या करेगी, वो जो बॉन्ड है ना, छोटे छोटे फाइबर को मिलकर लंबा आपका डोरी बन गई, धागा बन गया, उसको काटती है लाइट, उसको काटती है लाइट। और यूवी लाइट इज द मोस्ट डेंजरस लाइट, तो वो जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देती है। तो आप कभी देखिए कि कोई पुरानी बुक उठाए और खोलने की कोशिश में टूट जाती है, तो उसका रीज़न क्या है कि वो जो लंबा फाइबर था तो लाइट की वजह से धीरे धीरे टूटता चला गया। सो लाइट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं भाई, मेरे को टाइम तो दे रहे हो। अब ये देखिए, कंट्रोल ऑफ RH एंड टेम्परेचर, बोलते हैं कि इंडिया में हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता इंडिया में? हमारे साइंटिस्ट अमेरिका को चला रहे हैं, वो क्या नहीं सकता है। मैंने ये 100 दिन के लिए RH और टेम्परेचर जो है फिक्स किया था। कोई नज़दीक से जाके दे सकता है। हमको बाहर से जब वो एग्जीबिशन आई तो उन्होंने कहा हमको 50% RH चाहिए और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो बोलो हाँ, नहीं तो हम एग्जीबिट नहीं देंगे। अब हमारे मिनिस्ट्री ने हमको बुलाया, भाई ये ऐसे ऐसे करके तुम दे सकते हो, मैं कैंसिल कर, मैंने हम दे देंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए आपने पूछा, बोला नहीं, मेरा कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए एंड आई विल डू। एंटी डेज के लिए मैंने फिक्स किया था, जबकि 90 दिन एग्जीबिशन की मैक्सिमम रेट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत टाइम चला है, लेकिन ये आप देख सकते हैं। अच्छा देखो, जो बुक है वो ज़्यादा कैसे रेफर होती है, उनकी बाइंडिंग को आप स्टिच करें तो नीचे देखिए उसमें परफेक्ट का स्टैंड बना हुआ है जो आपको दिख भी नहीं रहा और बुक को सपोर्ट कर रहा है और इनडायरेक्टली वो बाइंडिंग को सपोर्ट कर रहा है। बाइंडिंग जो है उस पर असर नहीं पड़ रहा है। ये RCC की इंटरनेशनल डेफिनेशन बताऊँ क्या, देखिए उन्होंने 3 भाग में बताया। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि हम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल कंडीशन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम ये भी बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्शन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं होगा, उसको हम बोलते। अच्छा, एक और फायदा इसमें है कि प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में आप 100-50 दिन में ऑब्जेक्ट चाहे एक साथ एक गैलरी को, पूरे म्यूजियम को आप जो है ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं एक साथ। बट इन द केस ऑफ रेमेडियल कंजर्वेशन जो ये है, यहाँ डायरेक्ट एक्शन हम ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं और इस केस में हम आइडर एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होंगे या एक 2 ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ आप मास में प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ केमिकल्स का और चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। एंड जो है तो कंटिन्यूसली वॉच कि मैंने जो केमिकल यहाँ पर यूज़ किया है क्या वो सही में जा रहा है हमारे डायरेक्शन में, जो हमने सोचा था वो आ रहा है, और ये मैं कल तक परेशान। क्योंकि एक कंजर्वेटर कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरा कौन सा परसेंटेज यहाँ फायदा करेगा और कौन सा नुकसान करेगा। तो दैट विल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल एंड आल्सो द टाइम ऑफ टच। छोटो 5 मिनट। और ये रेस्टोरेशन क्या है कि जब सिंगल ऑब्जेक्ट को आपने स्टेबल बना लिया उसके बाद जो उस पर आप करते हैं स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। लेकिन कोलकाता में 90% लोग सब कुछ को रेस्टोरेशन है ना, बोलते हैं ना। तो आईकॉन को ही डिनाई कर रहा है, ये आईकॉन की डेफिनेशन है, यही नहीं। अच्छा, ये जो चेंजेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं हमारे एंटीबॉडीज में। एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ये हुआ जैसे ये बुक हो और मैंने उसको मोड़ दिया, मैंने उससे प्रेशर डाला वो खोल गया और उसको हटा दिया अपना प्रेशर तो वो फिर फ्लाइट हो गई। ये जिसमें कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, हम फोर्सेस जो हटा ले रहे हैं जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी हुई वो तो हुआ अपना फिजिकल कंडीशन। और केमिकल चेंजेस क्या है कि चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल।
तो आपका केमिकल चेंज होगा और फिजिकल अपीयरेंस में रिमेन सेम, बाहर से आपको ठीक दिखेगा बट केमिकल कंपोजिशन गेट चेंज, ये जाने का है। और एग्जाम्पल है इसके एसिडिटी, अगर आपके पेपर में स्टाइल में एसिडिटी हुई तो वो तो बढ़िया दिखेगी ऊपर से, लेकिन जिस दिन भी उसको पलटोगे आप टूट जाएगा। ऑक्सीडेशन, डिटेनेशन ड्यू टू लाइट, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, बस 5 मिनट। ये है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वर्टिकलिज्म के ऊपर, एसिडिटी और वाइट कैन चेंज इनटू ब्लैक। ये देखिए ये जो इस पर यहाँ से आएंगे ना, ये जो ये पिगमेंट है, these are not original। ये रेड वाइट था जो कि सल्फर डाइऑक्साइड हवा में ही है, उसके साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड लेड सल्फाइड बना रहा है, एक सल्फाइड बना रहा है जो कि ब्लैक इन कलर होता है। ये केमिकल है। आप रखी गए कि हमने वाइट आपको दिया था, ये काला मुझे कैसे दे रहे भाई, मेरा नहीं है, ये आपकी सिचुएशन जो आपने प्रेजेंट करने की उसकी प्रॉब्लम। और ये जो पर्टिकुलर डायमेंशन है मुझे लगता है साइंस वाले समझेंगे, कॉपर एसिड ग्रीन कलर होता है जिसका बहुत यूज हुआ मेडिवल पीरियड में, उसकी लाइनें भी बनाई हैं, उसका कलर भी किया। तो कॉपर वर्टिकलिस एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो मॉइस्चर की वजह से कॉपर एसिडेट में टूट जाता है। तो कॉपर तो ठीक है, एसिडेट चेंजेस आगे एसिडिक एसिड, और वो एसिडिक एसिड हो गया और वो पूरा पेपर को यहाँ से हैक कर दिया। ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल म्यूजियम का है और कलेक्शन, और मैंने वहाँ ठीक है। कोई क्वेश्चन और पूछे चला 5 मिनट तो 5 मिनट रखूँगा, 4 मिनट बचे। हाँ ठीक है सर। हाँ, ये तांत्रिक रोटी का Have any question? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो सर ये भी मिलेगा। तांत्रिक रोटी का आजकल जो विक्टोरिया में एक लड़का हुआ था हैंगर का, उसका प्रिजर्वेशन किया, गोल्ड के वो थ्रेड्स हैं और उसको डिस्प्ले किया। आप देखिए ये डैमेज थे, सिल्क तो पूरा गया हुआ था। ये इसकी मैं सिलाई कर रहा हूँ, जो मेटल जो होता है ना कंपोजिट मटेरियल, टेक्सटाइल अलग है, गोल्ड अलग है, और उसके तार निकले जा रहे हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं आएगा वो जो कंप्लीट होना है। अच्छा, डिजास्टर क्या है भाई? डिजास्टर टाइम बता के आएगा कि मैं आज आंधी आएगी, कल को पानी गिरेगा, आज तकलीफ आएगा, नहीं बता। मेरा कहने का मतलब है इस केस में, ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ पता नहीं होता, हमको प्रिपरेशन करने का टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए बिफोर हैंड हम प्रिपरेशन करके रखें कि अगर कुछ होगा, फ्लड आएगा तो हम क्या करेंगे, अर्थक्वेक आएगा तो हम क्या करेंगे, भुज का पूरा नहीं चला गया, फायर होगा तो क्या करेंगे, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पूरा खत्म हो। तो इसके बिफोर हैंड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बनाई थी मैन में डिजास्टर होता आगे। अभी मैं इसके एग्जांपल दिखाऊंगा, 2 मिनट हो गए। वार हुआ, झगड़ा हुआ, बॉम्बिंग हो गई, खत्म हो गया। टेररिज्म, बामियां योद्धा तोड़ डाला गया, कोई नहीं बचा पाया। और फायर हुआ JNK एकेडमी में, आर्टल कॉलोनी में लगाई थी, वो बुक्स मेरे पास आई थी और मैंने प्रेजेंट किया। अब आगे से फोटो है, ये बुक है, ये कुरान शरीफ है जो कि इसके ऊपर सेलोफेन पेपर लगाया था। सेलोफेन पेपर प्लास्टिक, कहाँ उन्होंने उसका कंजर्वेशन करा है, इसी वो मोची ही होगा, मतलब गुस्सा तो जो वो सोल्यूशन लगा है, ये तो प्लास्टिक है, इसमें ना चिपके नहीं। तो जो सोल्यूशन लगाया था, उस सोल्यूशन को रिसर्च करने में कैसे निकलेगा, 3 महीने लगे हैं। बाद में पता लगा कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंपोनेंट मिलते रहे हैं, तो ये सोल्यूशन है। एंड दैट वाज सोल्यूशन जो हमारे जूतों में यूज होता है। तो इतना आसान प्रिजर्वेटिव का काम नहीं है। तो ये आप देखिए राउंड शेप में हो गया, इसके बहुत से फोटो है, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए लाया हूँ। ये भी क्या है, डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। ये देखिए सेलोफेन पेपर हम निकाल दिए हैं और ये दिखाया कि पेपर अलग गया और एक पेपर अलग है, तो प्लास्टिक है, ठीक है। कैसे निकाला वो कंजर्वेटिव, ये फाइनल इसका है। और मैं 13 साल बाद दोबारा गया, क्यों गया वो भी आएगा। तो ये ऐसे कि ऐसे नहीं, कोई इसमें डैमेज नहीं हुआ। फ्लडिंग,
PS म्यूजियम श्रीनगर 2014 के अगस्त सितंबर में जबरदस्त डाउनपोर हुआ और इतना फ्लड आया कि वो बैंक टूट गया रिवर का। और ये श्री हरि सिंह म्यूजियम का जो है उसके अंदर में पानी 3.5 फीट पानी चला गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। 3.5 फीट पानी चला गया, पूरा सबमर्ज हो गया। वो बेचारों ने बहुत मेहनत करी, किसी का हाथ करके कि ग्लास सब टूट डाल रहे थे, किसी का क्या हो गया। और जो हमको गवर्नमेंट से आर्डर नहीं मिला हमारी बिजली का भागो, नहीं तो तुम्हारी आफत आनी है, उसको सेलेक्ट करो, लोग को लेके भागो। 3 आदमी वहाँ में खाने का नहीं था। फर्स्ट फ्लोर तक जो मुर्गा मुर्गी आटा दाल चावल रखा था पूरा सब सड़ गया था, खाने का नहीं। तीसरे दिन हमको खाना था। तो इतना आसान काम नहीं है करने के करना। जब आप किसी देखिए ना, जैसे देखा नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, कैडल मार्च निकालना, बचाओ बचाओ, इससे कुछ होगा क्या? ऑन स्पॉट चलो ना, कोई नहीं गया। तो आप देखिए आगे हमने इसको दिखाया है मैन्युस्क्रिप्ट में हमने क्या क्या किया। ये आपको काला काला जो दिख रहा है सारा फंगस है। हाँ, और वहाँ पर कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा सर्वेंट नहीं था जिससे हम इसको मार सकते। तो मैंने बोला भाई कुछ भी तुम्हारे पास हो, केरोसिन आयल हो, मैथिलेटेड स्प्रिट हो, वो दे दो। यहाँ हम सिद्धांत नहीं चलाएंगे, यहाँ हमको सबसे पहले फंगस खत्म करेंगे। तो ये मैं स्प्रे कर रहा हूँ। देखिए तो सारा स्टाफ लगा हुआ है, उसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये देखिए ये स्क्रॉल इसको मैन्युस्क्रिप्ट की टाइम में ग्लास के अंदर थी, खूब जबरदस्त फंगस शुरू हुआ था। और वो मैं इसको पर्टिकुलरली मैंने कहा खोलो क्योंकि 3 इंग्रेडिएंट्स खाना नहीं पानी नहीं क्या करेंगे मरेंगे वहाँ। तो ट्रीटमेंट करो और भाग। ये तो आपको पूरी जगह पर दिख रहे हैं, ये डायरेक्टर लीड एंड डायरेक्टर, ये मेरी टीम है, ये 3 मेंबर है, ये हमारा स्टाफ। और इधर मैं इसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। सुखाने की जगह नहीं है। इलेक्ट्रिक आप बोलोगे फैन क्यों नहीं चला, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, डोरी नहीं कि हम बांध के डोरी पे उस पर टेक्सटाइल को लटका दें। तो जो ग्लास वाले शोकेसेस थे उन्हीं के ऊपर इनको रखा होता है। ये सब जो पकड़े हैं ये क्यूरेटर है। तो बाकी मेरी 3 मेंबर हैं जो वो कर रहे हैं वेरिफिकेशन आपके थ्रू एक्सेशन रजिस्टर। क्योंकि गवर्नर ने बोला कि सीधा मेरे पास आओ, और मुझे अकल नहीं थी कि गवर्नर को हम डिनाई नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं तीसरे दिन आऊँगा लास्ट डे। तो ADC ने बोला आप ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या? बोला नहीं, वो जब बुला रहे तो आप बताइए क्यों नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई मैं जब तक जाके सिचुएशन ना देखूँ गवर्नर पूछेगा मैं क्या बताऊँगा, और उससे बढ़िया बड़ा रहस्य अभी सामने आएगा। तो मैंने बोला आप गवर्नर जी को बता दीजिए कि मैं कल शाम को विजिट करूँगा, एक बार स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ले लें। तो मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है। मैंने बोला था सुना बोलना, और वो तो बहुत तेज आदमी थे। ये देखिए लोकेशन ऑफ गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी हिस्ट्री के लोग जानते हैं, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट आर द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये वहाँ पे रखे हुए हैं, ये ऐसे रखा हुआ है, लेकिन इतना ऊपर होने की वजह से इनमें पानी नहीं मिलता, ये ऊपर था इस लेवल से। एक लेवल है, परेशान है, क्या करा जाए, हम भी तो परेशान है भाई। ये गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट के फोलियोज हैं। देखिए क्या बढ़िया कंजर्वेशन का पेपर चिपका दिया। अब ये है किसके, ये क्या है ये बताए। मटेरियल ऑफ गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट बर्च बाग। कभी आप अगर कश्मीर की साइड की बात करोगे तो आपको बर्च बाग मिलेंगे, कभी साउथ की बात करोगे आपको पानी मिलेगा। तो ये इस तरह से इन्होंने रखा, आप देख लीजिए ये कौन सा पेपर है। ये वो जो ऑफिस में फाइल यूज होती है उसमें लपेट के रखेंगे। शारदा स्क्रिप्ट है ये, हमको नहीं लगता है कि अभी स्क्रिप्ट करने वाला है, शारदा स्क्रिप्ट है। ये वो जो मैं पीछे विक्टोरिया वाला दिखा रहा था, ये उसका फाइनल है। देखिए जो कटा फटा वो सब था, ये फाइनल है। और बाद में इसको हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो बना के उसका बनाया। लेकिन देखिए एक बात आप समझिए कि जो आपका टेक्सटाइल है, अगर हैंगर पे डाल रहे हैं तो इतने एरिया पे पूरे टेक्सटाइल का प्रेशर आ रहा है, तो इतना एरिया पे ये डैमेज होगा।
और अगर ये हमारी तरह इतना मोटा कुछ बना के अगर इस पर किया जाए तो क्या होगा कि जो टेंशन वाला एरिया है फाइबर पे वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इतना मोटा आप पाइप लगा के उसको करोगे तो भाई। तो ये है वो ट्रांसफर टोपे का आंसर। ठीक है, बस खत्म हो रहा है ट्रांसफर टोपे का ओवर। अरे ये तो है महात्मा गांधी का ब्लड स्टेन क्या 25-30 साल से वो बेचारे कोशिश कर रहे थे राजघाट वाले कि कोई आदमी इनको प्रिजर्व करे क्योंकि इनकी क्या कंडीशन। और महात्मा गांधी का कुछ भी गड़बड़ हुआ मतलब म्यूजियम की रिटर्न दिया, म्यूजियम स्टार्ट किया। अब उन्होंने बराबर कोशिश किया कि भाई और जरा कोई प्रिजर्व कर दो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे भी एक लेटर आया कि साहब इसको प्रिजर्व करिए। तो मैंने अपने जूनियर से कहा कि अरे प्रिपरेशन करो, चलो इसको प्रिजर्व करके। बोला सर जाने की नौकरी चली है, हम लोग आता है लेकर को दवा देते हैं, हम कभी इसको एक्शन नहीं देते। मैंने कहा तुम क्या सोचते हो कि अगर हम नहीं करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका से कोई आके करेगा क्या? तो क्यों ना कोशिश करें। बोला आप डीजी से मैंने बोला कि आप हमको परमिशन दे दीजिए, हम यहाँ का फंड यूज करें, ये करें। उन्होंने बोला कोई परमिशन नहीं, कोई स्टाफ नहीं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू गो एंड ट्राई टू अरेंज। ठीक है, मैंने बाहर से ट्रेन बच्चे दिए और मैंने कहा मैं सुपरवाइज करूँगा, पूरा रिपोर्ट बनाया और हमने किया। ये देखिए वो नीचे में भी ब्लड स्टेन दिख रहा है ऊपर में। और ये जो घड़ी टाइप का है ये भी घड़ी में यहाँ लटका है। ठीक है, गांधी का। और इसमें ये बाहर का स्टाफ है जो मैंने बाजार से लिया। ये वहाँ की क्यूरेटर है बासमती, कुछ करके नाम याद नहीं है। ये मेरा कलीग है जिसको मैं चुपचाप बेंच में ले जाता था, मैं हूँ। और ये डायरेक्टर है, ये वहाँ का स्टाफ। तो इसको भी प्रेजेंट किया मैंने 2015 में, कोई शिकायत नहीं आ सकती। ये वही चीज़ें हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ हाउ टू डू, नहीं तो मेरा ज़्यादा कटेगा। ये देखिए ये जो हम ऊपर लाए ग्राउंड फ्लोर पर ये सर्विस का ऊपर लाए और इसके नीचे आपको वाइट दिख रहा है कहाँ गई अंकिता, जो नीचे भी दिख रहा वाइट ये क्या है? आपको भी पता होना चाहिए, ये प्राइवेट है। प्राइवेट का उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, प्राइवेट कह रहा कि आप कोई केमिकल यूज करें, कोई रिएक्शन ठीक है। तो ये देखिए आपको ब्लड डिस्टेंस दिख रहा है। अब एक प्रॉब्लम क्या आई, 2 यूनिट हम कर रहे हैं 4 अपडेट, नीचे 4 कपड़े शॉल, ऊपर का जो पैंट है तो नीचे का, और जिस कपड़े से हमको यहाँ पे जो बॉडी लगी है दबाया था 4 कपड़े। दूसरी यूनिट वो नहीं 23 कपड़े हैं। अरे मैंने तो गवर्नमेंट से 3.5 लाख का बजट मांगा, अब मैं इतने अपडेट कहाँ से करूँगा? मैडम आई टुक ए फेयर डिसीजन, आई कॉल टू CBI डायरेक्टर। मैंने बोला चिट्ठी डाली, मुझे आपकी फॉरेंसिक टीम की हेल्प चाहिए। और वो फॉरेंसिक टीम 3-4 बार उनको रिक्वेस्ट करने से उन्होंने भेजी। अगले साइड में दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट स्कैन और ब्लड स्कैन दोनों में आयरन है। इसके लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो प्रोटीन एनालिसिस करने को ब्लड में पाई जाती है, ब्लड में नहीं। वो हमारे पास नहीं था, दैट्स व्हाई वी कॉल फॉरेंसिक टीम। ये लोग जो दिख रहे हैं ना, ये नीला ग्लास का है, ये सब फॉरेंसिक उसकी टीम है, CBI की। ये और इन्होंने जब सारा टेस्ट करके दिया कि वीजा का क्लास जो गांधी केस में है घर में, तो हमने इतने प्रेशर किए, बाकी दिन में चिल्लाती रही, उन्हें मुझे कोई ना करें। अब ये जो है, अब ये देखो भाई टीवी नीचे में हमने पहले इसके क्या डाला टाइलेट, क्योंकि सारा प्रेशर टेक्सटाइल का जाना चाहिए टाइलेट पे, नहीं तो वो फट भी सकता है इतना पुराना। ठीक है, ये निकालते समय की फोटो और ये दोबारा प्लेस करते के समय की फोटो। थैंक्स। Thank you sir for your lecture. আশা করি প্রত্যেকেই কম বেশি বুঝতে পেরেছে। তো আমার একটা ছোট প্রেজেন্টেশন একটু কষ্ট করে শুনে না, দেন টি ব্রেকের সময় স্যার কাছে যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে थैंक यू मैडम। तो সেই সময় अभी तक बहुत सारी बातें हुई हैं। तो किसी ने बताया, मैडम ने जेसी बोस ट्रस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, which she will discuss it after the
श्री घोषाल साहब ने जो बताया कि म्यूजियम्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, एंड सविता जी एक तरफ से कैसे हम लोग रिस्टोर करेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ये भी बताया कि रिस्टोरेशन के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, which kinds of problem we will face. And my lecture is role of museum as a part of educational institution. जो पहली मैडम ने बता दिया जेसी बोस ट्रस्ट के बारे में, जब उन्होंने बताया था कि इट इज ए एपिसेंटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एज ए एपिसेंटर ऑफ नॉलेज एक्सचेंज, एंड एज ए एपिसेंटर ऑफ सो मेनी पीपल, दे आर काम, दे आर थिंकिंग, उन्होंने शेयर किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो दो पिक्चर्स थे, वन इज प्रिजर्व्ड इन विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ रविंद्रनाथ ठाकुर भारत माता, एंड अनदर इज जेसी बोस Nandolal, and this is created by Nandolal Ghosh. So my point of view is two person, one is child and his father, they are visit चंद्रकेतुगढ़ म्यूजियम, उन्होंने चंद्रकेतुगढ़ म्यूजियम में आए थे, तो हमारे एक सीनियर थे, तो उन्होंने बोला था म्यूजियम की एक ही चीज है, जब बच्चे उम्र है अपने पापा के हाथ पकड़ के जाओ, जब बड़े हो जाओ तो अपने बेटे का और बेटी को लेके जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं म्यूजियम से हो पाता है। लेकिन ये जो म्यूजियम है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स है, इसके जो आसपास में हम लोगों को जो मिलता है, इससे केवल ही नॉट ओनली हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं कल्चरल हेरिटेज, नॉट ओनली आवर कल्चरल हेरिटेज, उसके साथ साथ वी आर डिपिक्टेड आवर नेशनलिज्म। एंड जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चालू हुए थे, तब हड़प्पा मोहनजोदड़ो का डिस्कवरी जब काम में आ रहे थे, तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना था कि हमारे जो कल्चर है, हमारे जो हेरिटेज है, वो ब्रिटिशर्स से किसी हिसाब से कम नहीं है, हम पीछे नहीं है, वी आर टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, आवर ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न इज वेरी गुड, our trading contact with Far East and Mesopotamian culture, etc., etc. So first I visit in Sarnath, because Sarnath, Dhamika Stupa and Vidyabhumi Stupa, and here a museum has been established by the Archaeological Survey of India, and it is called Site Museum. And this site museum is very important for procure our knowledge in different aspects. First, excavation is a complete destruction. क्योंकि हम लोग पहले जिस अवस्था में थे, हम लोग लौट नहीं पाए. That does not come from previous era. So this site museum हम लोगों को पता चलता है कि पहले जो हालत थे कैसे थी उस जगह का. This is the viewpoint of Sarnath Museum. And now the present very much debated condition is Ashokan pillar. Now the modern government dedicated a new formation of the pillar, and this pillar highlights several aspects. Number one is West Asiatic influence or Passiporian influence, which kind of rocks have been used, and it is highlight the royal supremacy of the Ashoka. We know the importance of Sarnath. Sarnath, one of the famous Buddhist sites, and 5 disciples of Buddhas is situated in Sarnath. और इसके बारे में एक कहानी भी है. सारनाथ में ना बहुत अच्छा है. तो क्या हुआ था, बुद्ध का 5 शिष्य एक टाइम पे उनका टीचिंग एक्सपीरियंस से इतना काम आ गया था तो लोग भाग गए. तो हम और शांतनु माई थी बहुत 3 दिन सारनाथ में थे, तो हमने बोला इसलिए नहीं भागा था, मच्छर के काटने से ही वो लोग भाग गए थे. तो इतना मच्छर सारनाथ में है. तो दिस इज द फेमस धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, एंड इट इज इन धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, बट इट इज इन प्रलंब मुद्रा, जिसका रॉयल पॉस्चर हम लोग दिखाई करते हैं. It is the famous standing image of Sarnath. So हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं, एक म्यूजियम से हम लोग ये पाते हैं कि कौन किस तरह का कार्विंग होता था, the excellence of carving, उसका डेलिकेसी कैसा था.
उन टाइम का, उस समय का हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह का थिंकिंग था उन लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात है, ये जो स्कल्पचरल आर्ट हम लोग देख रहे हैं, आप जब आर्ट करते हैं तो ईस्टर्न इंडियन मिडाइवल स्कल्पचर के राखालदास बंदोपाध्याय का एक थ्योरी है, बुक है, और उनका एक डेवलपमेंट थ्योरी है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था ये सारनाथ से ही हुआ था, और सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट एक लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, इट इज इन्फ्लुएंस ईस्टर्न इंडियन आर्ट। दिस इज द डिपिक्शन ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा। Now we are visit our Bengal, it is Chandraketu Museum. The Chandraketu Gallery, you are know Chandraketu? It is situated in Devganga in Boshirat subdivision, and the chronology of Chandraketu from pre-Christian era to early Middle 8th century. And some archaeologists, those who are excavated the Chandraketu, he says that the crude PGW wax have been recovered at lowest level from the Chandraketu. This is the terracotta, it is the imitation of amphora. Imitation of amphora. A snake-footed male figure, completely a Middle East art style, and it is a terracotta. कोई picture लेकर movement है और rank toy card. This art style highlights the sophistication of clay sculpture in Bengal. क्योंकि बंगाल के इस region में हम लोगों को stone नहीं मिलता। Now we are visit Ratnagiri. It is the entrance of Ratnagiri monastery. It is the Gajalakshmi image, and this Gajalakshmi image is not only related with Hinduism but also in Buddhism. Some scholars identify it is the Maya, the mother of Buddha. And this is the Ratnagiri museum, and the basic feature of this monastery complex is scattered. A huge number of sculptural art has been situated in different parts of the monastery, and a large number of sculptures have been preserved in museum. And this site excavated our Bengali women, our famous archaeologist Bengali. This is Allahabad Museum. Trimurti and Lingam and Shiva. And my last site, this image is situated in Allahabad Museum, model of surgery, Koshambi, 7th century. The instantine is very clear. Portion. So this object highlights our previous surgery or previous surgical achievement in Indian history. One of the important evidence which is preserved, because our Shastra, our scriptures, they Shusruto, Vishapo, Jivapo, they are mentioned different kinds of diseases and different kinds of surgical aspects. But this object highlights the full feature of the human body. So एक म्यूजियम विजिट करने से हम लोगों को जो मिलता है वो एकदम बहुत ही क्लियर है कि हम लोग केवल ही घूमने के लिए म्यूजियम नहीं जाते हैं। आपको अगर म्यूजियम जाना है तो बहुत से टाइम आप लोग वो ऑब्जेक्ट को आप लोग छू कर देख पाते हैं। बहुत से जगह आप इंडियन म्यूजियम में जाइए, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे स्कल्पचर ऐसे पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप हाथ लगा पाते हैं, तो एक अच्छा फीलिंग होता है। बहुत सारे जगह पे आप लोग अपने नाम भी देख के आते हैं, ये भी हम लोगों का रुचि है मैडम। तो क्या करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक विजुअलाइजेशन होता है क्योंकि हम लोग सब एक्सकवेशन पे जा नहीं पाते हैं। दूसरी जो बात है वो एकदम कि हम लोगों को अपना कल्चरल हेरिटेज के बारे में पता चलता है, हमारा कल्चरल पास्ट कैसा था।
और तीसरी बात जो है, हम हाईटेक डिस्प्ले पर बहुत सारे जोर देते हैं कि आज के ज़माने में जो हालत है इंडियन हिस्ट्री राइटिंग का, इंडियन पॉलिटिक्स का, उससे बाहर निकालने के लिए एक कम्प्लीटली एक न्यू कोलैबोरेटिव एविडेंस हम लोगों को म्यूजियम से मिलता है, जिसके बड़े एक एविडेंस है ये जेसी बोस ट्रस्ट, जहाँ पर ये जो नॉर्दर्न बोस एंड हिज कंटेम्पोररीज का फेस को हम देखते हैं तो जैसे लगता है कि हम लोग अजंता में शायद चले गए। थैंक यू। আপনি একটা ভোট অফ থ্যাঙ্কস আপনি আমাকে বলে नहीं देखिए नहीं से बोला है। अभी मैडम प्रोग्राम के एंड में वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं, देन वी आर डिस्ट्रीब्यूट आवर सर्टिफिकेट्स। तो मैं This is my sacred duty now to thank all of you to make the program against success. I acknowledge the gracious presence of all of you, the speakers, and my humble staff. Humble staff, only four. Gita, neurologist, neurologist, I have joined from Bishop Jonashakro. She is our IT person. She boasts that we don't know anything. But she does a good thing anyway. And the speakers and audience and everybody, we are grateful to all of you. It is your museum, not J.C. Trust. It is the national property, national heritage. It should be maintained. Not only that, it is an epitome of how a personal house of scientist or a star can be converted to a museum, keeping in situ condition all the display. Without display, we are displaying everything in situ condition. If you have time, next time, it is open on Monday, Wednesday, Friday. Generally available. Museum open here. Museum open 11:30 to 1:30, then 2:30 One. to 1. 1 and then 2 to 4:30. So it is in your website and all the Facebook, etc. All that it is there. So you come at least 1 hour time. You need 4-story building. If you want to do justice, you have to see and spend 1 hour time. Okay, that is so. It's your museum for all of you. And Chandra is restoring. He restored 125 years old town of Jesse Bosch. He used in 1896. And he is using, restoring now a sari of Lady Bosch, Lady of the Bosch, which is also 120 years old. And it will be a unique display, I think, I'm sure, only this one. And he did many other things. Not only that, there are many other things. There is another story. You have to organize seminar with this problem. मुझे आप लोग से एक चीज़ कहनी है। मैडम ने अपने स्टाफ का इंट्रोडक्शन दिया, बट मैंने जो कुछ एसोसिएशन यहाँ से वो देखा है, ये लोग ऐसा नहीं कि वो म्यूजियोलॉजी से किया है, ट्रेनिंग किया तो वही काम करेंगे। मल्टी टास्किंग स्टाफ हर काम करते हैं। ये मुझे भी हेल्प करते हैं सर, क्योंकि मैं अकेला कोई काम नहीं कर सकता। दे आर ऑलवेज हेल्पिंग। तो इनका जो डेजिग्नेटेड काम है वो तो करते ही, उसके अलावा भी सारे काम म्यूजियम के करते हैं कि स्टाफ इज नॉट देयर। दे आर वेरी लेबोरियस। Don't allow anybody to go to the anywhere. Not only security mechanism, but you need explanation, you need story. Yeah. And storytelling is another, to display the object. But storytelling is very, very important. मैंने बहुत शार्ट में पढ़ाया, नहीं तो मैं उनको सारा ही बताता कि स्टोरी टेलिंग आपको क्यों जरूरत है। लेकिन हमें लगता है इतना सब आप लोग जानते हैं। विदाउट स्टोरी टेलिंग किसी आते तो वैल्यू नहीं। जब उसके साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन ही दिया तो
Thank you to all. Okay. Aadab.